So today's topic is difference between the exotoxin and the endotoxin. What is the basic difference between exotoxin and endotoxin? This can be asked in MCQ type of the questions and also in the theory based paper for the second year BDS student. एंडोटॉक्सिन में क्या होता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है उसके आउटर मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। तो जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसके अंदर एक ऐसे लाइपोपॉलीसेकेराइड सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो जब ये डिग्रेड हो जाता है तो ये लाइपोपॉलीसेकेराइड बाहर आ जाती है एंड दिस लाइपोपॉलीसेकेराइड्स इज further known as endotoxin. So a lipopolysaccharide component of outer membrane of gram-negative bacteria is known as endotoxin. Only one except Listeria monocytosis is only gram-positive bacteria that produce endotoxin. Otherwise, endotoxin is produced by gram-negative bacteria. Next, exotoxin is produced extracellularly by both gram-positive as well as gram-negative bacteria. Suppose this is bacteria, here exotoxin is present, it will release outside this bacteria. Okay, means live bacteria also can produce exotoxin, while in endotoxin, as the bacterial cell wall lipopolysaccharide degrades and form the endotoxin, so it is produced after the degradation of the bacteria. Now, exotoxin is lipopolysaccharide in nature, endotoxin is lipopolysaccharide in nature, while exotoxin is protein in nature. तो जो मॉलिक्यूल प्रोटीन है नेचर में दैट विल बी हीट लेबाइल, ओके, इजीली हीट के कांटेक्ट में आके ये टूट जाएगा, जबकि एंडोटॉक्सिन इज हीट स्टेबल बिकॉज इट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड, इट विल बी हीट स्टेबल. नाउ it is secreted by the cell, while endotoxin form the part of cell wall. It is not secreted, it is the part of the cell wall. Fifth one is it is a protein in nature, so its action is enzyme. Enzymatic action is also shown by the exotoxin, while no enzymatic action is shown by the endotoxin. Next is it is active in minute dose. Even the minute dose of exotoxin will be active, while only in large dose endotoxin is active. For endotoxin to be active, it should be present in the large dose. So it is enzyme in action, enzymatic है, साथ साथ में ये एंटीजेनिक भी होता है, हाईली एंटीजेनिक. प्रोटीन जो होता है वो हीट लेबाइल होता है, प्रोटीन जो होता है वो एंजाइमेटिक एक्शन भी शो करता है, प्रोटीन जो होता है वो एंटीजेनिक भी होता है, जबकि लाइपोपॉलीसैकेराइड हीट स्टेबल होते हैं. लाइपोपॉलीसैकेराइड कोई एंजाइमेटिक एक्शन शो नहीं करते हैं एंड दीज आर वीकली एंटीजेनिक. एंटीजेनिक भी वीकली होता है, क्योंकि ये वीकली एंटीजेनिक है तो न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज इनइफेक्टिव. एंटीजेनिक नहीं है तो एंटीबॉडी से न्यूट्रलाइज भी नहीं होंगे. वाइल हियर द एक्सोटॉक्सिन एक्शन स्पेसिफिकली न्यूट्रलाइज बाय द एंटीबॉडी, क्योंकि ये एंटीजेनिक है तो ये एंटीबॉडी के द्वारा न्यूट्रलाइज्ड भी हो जाएंगे. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट फॉर ईच टॉक्सिन. हर टॉक्सिन पे स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, वाइल हियर इट इज नॉन स्पेसिफिक. प्रोटीन कैन बी टॉक्सोइड, इट कांट बी टॉक्सोइड. एंड लास्ट इज एक्सोटॉक्सिन is sensitive to chemical agent like formaldehyde. ये formaldehyde किसके लिए यूज़ करते हैं अपन? स्टेरलाइजेशन के लिए यूज़ करता है. तो जब अपन किसी भी चीज़ को स्टेरलाइज करेंगे उसके ऊपर अगर कोई एक्सोटॉक्सिन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का तो formaldehyde से वो हट जाएगा, क्योंकि वो सेंसिटिव है. एंडोटॉक्सिन जो कि होता है वो सेंसिटिव नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड या कोई भी केमिकल एजेंट से. सो क्या क्या डिफरेंस हो गया? एक्सोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेल्युलरली, इट इज प्रोटीन इन नेचर, एज इट इज प्रोटीन इन नेचर हेंस इट इज हीट लेबाइल, secreted by the cell, action is enzymatic action, active even in minute dose, highly antigenic,
Excel specifically neutralized by antibody. Specific pharmacological effect for each toxin can be toxoid and chemical agent is like formaldehyde to which it is sensitive. While in endotoxin, it is the component of outer membrane, lipopolysaccharide in nature, hence heat is stable, no enzyme action, weakly antigenic, active only in large dose. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीबॉडी इज इनइफेक्टिव क्योंकि एंटीजेनिक है ही नहीं तो एंटीबॉडी से न्यूट्रलाइज कैसे होंगे. ठीक है, इफेक्ट इज नॉन स्पेसिफिक एंड इट कांट बी टॉक्सोइडेड. सिंपल. Now we will categorize the bacteria into 3 different types. First is whether it is obligate intracellular or facultative intracellular. Second will be based on the thermal requirement, temperature requirement, and third will be based on the oxygen requirement. Okay, obligate intracellular or the facultative intracellular means obligate means those bacteria which live resides only in the live cells or the other organism which have to be depend upon the other cell or other organism to carry out their life. Why? Because they themselves do not synthesize ATP. So obligate intracellular organism means for any cell to survive they have to produce ATP. They have to synthesize ATP. If they can't synthesize ATP, they will depend upon another cell. Okay, say here, obligate intracellular organism are not capable of metabolic pathway for the ATP synthesis, so they are dependent on ATP of the host cell. Okay, so that's why they can't be grow in the media which do not contain cell. दैट इज सेल फ्री मीडिया. ऐसे मीडिया जिसमें सेल है ही नहीं तो रह ही नहीं पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेंगे एटीपी सिंथेसिस के लिए. ठीक है, जबकि फैकल्टेटिव मीन्स दो सेल विच कैन लिव बाय देमसेल्फ आल्सो outside cell and also inside another cell, inside any another organism. How? Because these bacteria are capable of synthesis of their own ATP, they are usually live in extracellularly. Okay, in contrast to this. But if these bacteria are phagocytous, if these bacteria जैसे ये host है, host के cell में इसको अंदर ले लिया. ठीक है, phagocytous by the host macrophage or neutrophil, then yet they can survive in this WBC. अगर ये खुद का एटीपी सिंथेसिस कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा सेल्यूलरली तो रहेंगे ही रहेंगे. बट अगर किसी होस्ट के सेल ने इनको फैगोसाइटोसिस से या फिर न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस से उसको एनगल्फ कर लिया, अपने सेल के अंदर ले लिया, तो ये क्या करते हैं, फैगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन को इनहिबिट करते हैं और होस्ट के जो टॉक्सिक H2O2 और सुपर ऑक्साइड रेडिकल से एस्केप होके ये उसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं. So these bacteria are phagocytosed by the host macrophage and the neutrophil, yet survive with these WBC by inhibiting the phagosome lysosome fusion, thus escaping host toxic H2O2 and superoxide radical. Superoxide radical और H2O2 को भी escape करके ये अंदर आराम से रह जाते हैं. इसलिए these are facultative. ऑब्लिगेट, अगर अपन कहते हैं ऑब्लिगेट ही एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो एक्स्ट्रा सेलुलर ही रह सकते हैं. एग्जाम्पल फॉर ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर आर RVTCM. आर मीन्स रिकेट्सी वायरसेस ट्रिपोनिमा, क्लैमाइडिया एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रिन. वाइल हेयर इट इज L2LMN बॉयज BYS. ठीक है, BYS. L is Listeria monocytosis and Legionella, Mycobacterium and Neisseria. Neisseria, Mycobacterium, Legionella, Listeria monocytosis, Brucella, Yersinia and the Salmonella typhi. These are the facultative intracellular organisms.
Nism. Okay, this is all about whether the bacteria is obligate intracellular or facultative intracellular. It is based on the ATP synthesis. Second is thermal requirement. It is categorized into three types. That is mesophilic, cyclophilic, and the thermophilic. Mesophilic is the neutral, the bacteria which can resides in 25 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस, जैसे ह्यूमन बॉडी का लगभग इसके बीच में ही वेरी करता है टेम्परेचर. सो मेसोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट बिटवीन 25 to 40. जो 25 से बिलो आ जाता है वो साइक्लोफिलिक, ये वो बैक्टीरिया जो फ्रिज के अंदर पड़े हुए फूड पे भी ग्रो कर जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे के टेम्परेचर में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं. वाइल थर्मोफिलिक बैक्टीरिया दैट इज ग्रो इन 55 to 80 डिग्री सेल्सियस. ओके, 55 to 80 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करते हैं. ये वो बैक्टीरिया है जो गर्म खाने में भी रह जाते हैं. खाना अगर आपने 80 डिग्री सेल्सियस पे भी गर्म कर दे तो भी ये उसमें रिसाइड करते हैं. तो दिस इज बेस्ड ऑन द थर्मल रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, दैट इज एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया. Bacteria can be classified into the third category based upon the oxygen requirement. ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या होता है? देखिए, अगर 3 एंजाइम होता है दैट इज कैटलिस, पर ऑक्साइडेज एंड द सुपर ऑक्साइड डाइमेट्रेज. कैटलिस, पर ऑक्साइडेज एंड द सुपर ऑक्साइड डाइमेट्रेज. These enzymes break down the oxygen free radical particles. तो क्या होता है कि the bacteria which possess these three enzymes, that is catalase, superoxidase, diamidase and the peroxidase, they can break down oxygen radical and prevent themselves from the oxidative damage. जिन बैक्टीरिया के अंदर ये 3 एंजाइम पाए जाएंगे वो अपने आप को ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से बचा लेंगे. इस वजह से वो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बच जाएंगे, इसलिए वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकते हैं. ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? एरोब्स. जिन बैक्टीरिया के अंदर ये 3 एंजाइम नहीं पाए जाते वो अपने आप को ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से नहीं बचा पाते हैं, उनमें ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए वो नॉन ऑक्सीडेटिव साइट को प्रेफर करते हैं, इसलिए वो एनएरोब्स कहलाते हैं. फिर क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया के अंदर तीनों की तीनों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो वो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो मोस्ट ऑक्सीजन टॉलरेंट की कैटेगरी में आते हैं. कुछ बैक्टीरिया में इनमें से केवल 1 या 2 ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो वो लेस ऑक्सीजन टॉलरेंट की कैटेगरी में आते हैं. मोस्ट ऑक्सीजन टॉलरेंट, लेस ऑक्सीजन टॉलरेंट. बट कुछ बैक्टीरिया के अंदर इन तीनों में से एक भी एंजाइम नहीं होते हैं तो फिर वो कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन एट ऑल, फिर वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर सकते. इसी के बेसिस के ऊपर बैक्टीरिया को ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एरोब, माइक्रो एरोफिलिक एंड ऑब्लिगेट एरोब. ऑब्लिगेट मतलब ओनली एंड ओनली एरोब्स एंड ओनली एनारोब्स. ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर ये तीनों पाए जाते हैं और वो आराम से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह सकते हैं, उन बैक्टीरिया को ऑब्लिगेट एरोब्स की कैटेगरी में डाला गया है. तो ग्रो ओनली इन एरोबिक कंडीशन. अगर ऑक्सीजन थोड़ा भी कम हो जाए तो ये रह ही नहीं पाते हैं. तो कौन कौन से बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं? LMNP, लेजियोनीला, माइकोबैक्टीरियम मेनिंजियोकोकाई, नोकार्डिया एंड दी स्यूडोमोनास. LMNP and B3 that is ब्रुसेला, बॉर्डिटिला, बैसिलस सीरस. लेजियोनीला, माइकोबैक्टीरियम मेनिंजियोकोकाई, नोकार्डिया, स्यूडोमोनास एंड ब्रुसेला, बॉर्डिटिला एंड दी बैसिलस सीरस. ठीक है. ऑब्लिगेट एनारोब मीन्स नो एंजाइम टू डिपेंड अगेंस्ट ऑक्सीजन. वो अपने आप को ऑक्सीजन से डिपेंड कर ही नहीं सकते,
hence grow only in aerobic condition. Example are Clostridium and the bacteria. Clostridium tetani, Clostridium perfringens जिससे गैस गैंग्रीन होती है, जिससे टिटनस होता है, वो सब एनाएरोबिक कंडीशन में होता है। उनको अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो नहीं रह पाते। सेम बैक्टीरिया, दीज टू आर द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्लिगेट। तो अपन कैसे बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं? अगर सपोज अपन को क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के बारे में पूछ लिया कि लिखो ये क्या होता है, तो पहले बात बताओ ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव, एरोब्स है कि एनएरोब, ऑब्लिगेट एनएरोब, ठीक है। ऐसे करके फिर अपन इसके बारे में लिखते हैं। फैकल्टेटिव एनएरोब्स क्या होते हैं? ये इनमें तीनों एंजाइम प्रेजेंट होती है, ये ऑक्सीजन को ही प्रेफर करते हैं, एरोबिक कंडीशन को प्रेफर करते हैं, तीनों एंजाइम होती है। बट अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए या एब्सेंस में भी ये ग्रो कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो ग्रो इन दी एब्सेंस ऑफ दी ऑक्सीजन। कैसे ग्रो करते हैं? जब इनमें तीनों एंजाइम है तो फिर ये बिना ऑक्सीजन की कैसे ग्रो करेंगे? बाय यूजिंग फर्मेंटेशन ऑफ एनर्जी। अपनी एनर्जी मतलब एटीपी को फर्मेंटेट करके, एटीपी को फर्मेंट करके ये लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं। तो फैकल्टेटिव मतलब फैकल्टेटिव एनारोब्स, ज़रूरत पड़ने पे वो एनारोब्स भी हो सकता है, असल में वो एरोबिक कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं, प्रेफर्ड एरोबिक कंडीशन, बट कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। एग्जाम्पल फॉर दिस आर स्टेफाइलोकोकस साल्मोनेला शिगेला, स्टेफाइलोकोकस साल्मोनेला शिगेला, मैकली, MAC, मैकली, मैक मतलब माइकोप्लाज्मा एक्टिनोमाइसिस कॉर्निबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा एक्टिनोमाइसिस कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टीरिया एंड इकोलाई, माइकोप्लाज्मा एक्टिनोमाइसिस कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टीरिया इकोलाई, इट इज फैकल्टेटिव एनारोब। एक्टिनोमाइसिस वगैरह के बारे में डिटेल में पूछता है तो इट इज फैकल्टेटिव एनारोब्स। माइक्रो एरोफिलिक क्या होते हैं? दीज आर एरोटॉलरेंट एनारोब। एरोटॉलरेंट एनारोब मतलब ये प्रेफर्ड एनारोबिक कंडीशन करते हैं, जैसे ये प्रेफर्ड एरोबिक कर रहे थे बट एनारोब्स में भी रह सकते हैं। सिमिलरली ये प्रेफर्ड एरोबिक कंडीशन करते हैं बट कैन टॉलरेट लो ऑक्सीजन। लो ऑक्सीजन कैसे टॉलरेट करेंगे? बिकॉज दे हैव दी सुपर ऑक्साइड डायन्यूक्लियस, एक एंजाइम प्रेजेंट होती है। तो अपन ने पढ़ा था जो बैक्टीरिया में तीनों प्रेजेंट होती है वो मोस्ट ऑक्सीजन टॉलरेंट, जिसमें एक से दो भी प्रेजेंट होती है वो लेस ऑक्सीजन टॉलरेंट, तो वो माइक्रो एरोफिलिक। एग्जाम्पल आर स्ट्रेप्टोकोकस, स्पाइरोचिट्स एंड दी कैम्फाइलोबैक्टर। कैम्फाइलोबैक्टर पेरियो के अंदर आप पढ़ेंगे और स्पाइरोचिट्स भी पेरियो के अंदर पढ़ेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन दी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड तीन जो एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डेटा कैटलिस, पेरोक्साइडेज, सुपर ऑक्साइडेज। नेक्स्ट टॉपिक विल बी दी फेजेस ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोथ। देखिए अब बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है? बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसके चार फेजेस होते हैं, दैट इज लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड द फेजेस ऑफ द डिक्लाइन। सबसे पहले आता है लैग फेज। लैग फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज एंड ये सबसे लंबा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि नंबर, नो इंक्रीज इन सेल नंबर, नो इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल के नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता है, बिकॉज द बैक्टीरियल सेल आर बिजी इन replicating various protein and DNA in preparation for the next phase. नेक्स्ट फेज की प्रिपरेशन में लैग फेज के अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन है, जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है बट इसके नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं, जैसे कि ये कांस्टेंट चलता रहता है। तो दिस इज नोन एज लैग फेज। ओके, लैग फेज के अंदर 3 पॉइंट व्हाट आर टू बी रिमेंबर, दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज, नो इंक्रीज इन द सेल नंबर, and the cell size increases, bacterial cell are busy replicating the protein and the DNA in preparation for the next phase. Second phase is log phase. Log phase is also known as exponential phase or the second phase. इसके अंदर bacteria is extremely active and begin the process of dividing. बैक्टीरिया धीरे धीरे डिवाइड होना चालू हो जाता है। ओके, ऐसे तो इंक्रीज इन द सेल नंबर, तो बैक्टीरिया इज एक्सट्रीमली एक्टिव, बिगेन द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली
and if we draw the line on the graph we will obtain a straight line. lag phase के बाद एकदम this, so this is exponential and also known as log phase. lag phase, exponential, that is the log phase, followed by the stationary phase. स्टेशनरी फेज मतलब जो भी बैक्टीरिया, सपोज एक मीडियम के अंदर यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ओके, इसके अंदर जितना भी खाना पड़ा था, जितना भी न्यूट्रिएंट्स पड़े थे, इस बैक्टीरिया ने ले लिए। एक टाइम के बाद वो न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो जाएंगे। जैसे ही खत्म हो जाएंगे ये बैक्टीरिया डिवाइड होना रुक जाएगा। ये अब टॉक्सिन रिलीज करेगा। पहले तो न्यूट्रिएंट थे, अब जब टॉक्सिन रिलीज करेंगे तो उसकी वजह से ये मरने चालू होंगे। तो द टाइम व्हेन द रेट ऑफ सेल डेथ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सेल डिवीजन, जितने नए बन रहे हैं उतने मर भी रहे हैं, देन वी विल ऑब्टेन अ स्टेशनरी फेज। दिस इज नोन एज स्टेशनरी फेज। क्यों? क्योंकि द सेल डिवीजन स्टॉप ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन होने लग गया एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन प्रोडक्ट्स। न्यूट्रिएंट्स तो कम होगा, टॉक्सिन प्रोडक्ट्स बढ़ गए। इस वजह से रेट ऑफ सेल डेथ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सेल डिवीजन। धीरे धीरे क्या होगा, सेल डिवाइड सपोज 10 हो गए, डेथ भी 10 हो गई। धीरे धीरे डेथ के नंबर बढ़ जाएगा, डिवीजन का नंबर कम हो जाएगा और चौथा फेज आ जाएगा, डेट इज फेज ऑफ decline, that is also known as the death phase, that is final phase. Here the number of dead is greater than the new one, so again we will get a decline phase. And the fourth phase, the lag, log, this stationary, and finally that is the death phase. अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है देखिए, क्वेश्चन कैसे आता है, मैक्सिमम सेल साइज इज ऑब्टेन इन विच फेज, देन वी विल राइट लैग फेज। लैग फेज के अंदर साइज सबसे ज़्यादा होती है, लैग फेज के अंदर साइज सबसे ज़्यादा होती है। मैक्सिमम सेल नंबर आर फाउंड इन द लॉग फेज। जब वो डिवाइड हो रहे तो साइज छोटी हो जाएगी, तो सेल आर स्मॉलर। एंड स्टेनिंग, जब भी अपन कोई स्टेनिंग कर रहे हैं, ग्राम स्टेनिंग हो गया, जेडेन स्टेनिंग हो गया, नेगेटिव स्टेनिंग हो गया, जो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो स्टेनिंग किस फेज में देखने को मिलती है, लॉग फेज। अपन ने एक स्लाइड लिया, ठीक है, इसके ऊपर अपन ने एक बैक्टीरिया का कुछ डाला और उसको स्टेन किया। ये बैक्टीरिया तभी स्टेन होंगे जब वो लॉग फेज के अंदर चले जाएंगे। लैग फेज के अंदर रहते रहते उसके अंदर स्टेनिंग नहीं होती है। यूनिफॉर्मली जो कि होता है वो लॉग फेज के अंदर ही होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज बैक्टीरिया स्टिंग यूनिफॉर्मली, देन आंसर विल बी द लॉग फेज। इन स्टेशनरी फेज स्पोरुलेशन इज इन। अब बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोडक्ट के संपर्क में आ रहा है, उससे बचने के लिए वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, स्पोरुलेशन स्पोर्स बनाएगा। तो क्वेश्चन अराइजेस स्पोरुलेशन एंड द एक्सोटॉक्सिन्स आर सीन इन stationary phase, where the irregular staining and gram variability is also seen. Next is formulation of involution form. इनवॉल्यूशन फॉर्म का फॉर्मुलेशन इनवॉल्यूशन फॉर्म, क्योंकि अभी डेथ फेज है, डेथ से बचने के लिए बैक्टीरिया एक फॉर्म बनाएगा, डेट इज नोन एज इनवॉल्यूशन फॉर्म। बैक्टीरिया बचने के लिए एक फॉर्म बनाएगा, डेट इज नोन एज involution form, and formulation of involution form is seen in phase of decline. So here are the four phases, that is lag phase. lag phase के अंदर साइज सबसे ज़्यादा होती है। lag phase के then log phase, log phase के अंदर बैक्टीरिया यूनिफॉर्मली स्टेन करता है। then stationary phase, इसके अंदर स्पोरुलेशन एक्सोटॉक्सिन होता है। and then decline phase, इसके अंदर इनवॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। Next we will learn about cosh postulates. तो देखिए cosh postulate was given by the Robert Koch. Robert Koch आप जी का क्या कहना था कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, that is को सपोज कोई व्यक्ति है जिसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन लेके कल्टीवेट कर सकते हैं एक कल्चर के अंदर, ठीक है। तो वो उस डिजीज के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रहेगा। सपोज इसको टाइफाइड है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से हो रहा है,
तो अपन ने ये निकाल के किसी ने कल्चर किया तो इसमें भी वो बैक्टीरिया पाया जा रहा है, तो उसको कहेंगे कि हाँ इसके अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट था। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी फाउंड इन ऑल केसेस ऑफ द डिजीज इन क्वेश्चन। डिजीज सपोज अपन एग्जाम्पल पे ले रहे हैं टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड के जितने भी केसेस हैं सबके अंदर ऐसा नहीं है कि मुझे टाइफाइड है तो मेरे को मेरे में साल्मोनेला टाइफाइड पाया जा रहा है, किसी और का उसमें कोई और ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। नहीं, माइक्रोऑर्गेनिज्म शुड बी फाउंड इन ऑल द केसेस ऑफ द डिजीज इन क्वेश्चन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लीजन ऑब्जर्व। जो लीजन अपन देख रहे हैं बॉडी के अंदर उसके हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सेकेंड, कोई भी इस फिर जो ये ऑर्गेनिज्म है, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी ग्रो इन प्योर कल्चर इन विट्रो। इन विट्रो के अंदर अपन इसको प्योर कल्चर में ग्रो कर सकते हैं, होने चाहिए, ठीक है। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट फॉर द सेवरल जनरेशन। फिर इस कल्चर को जब अपन ने कोई दूसरी एनिमल स्पीसी के अंदर डाला, कोई दूसरा ही एनिमल स्पीसी के अंदर डाला, सपोज पहले ह्यूमन था ह्यूमन नहीं है, तो इसमें भी वो सेम ही डिजीज़ करना चाहिए जो इसके अंदर थी, तब अपन कह सकते हैं कि हाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है। अगर उसमें ये सेम डिजीज़ नहीं करा इसका मतलब नो, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड है। तो व्हेन सच प्योर कल्चर इज इनोक्यूलेटेड इनटू ससेप्टेबल एनिमल स्पीसीज द टिपिकल डिजीज मस्ट रिजल्ट। टिपिकल डिजीज इसमें भी प्रेजेंट होनी चाहिए और फिर इससे भी अपन वापस से आइसोलेट कर लेने चाहिए। माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट अगेन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रीजन ऑफ सच एक्सपेरिमेंटल प्रोड्यूस्ड डिजीज। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक खुद व्यक्ति है जिसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, वो एक डिजीज कॉज कर रहा था जिसका नाम था एक्स। अपन तभी मानेंगे कि ये एक्स इस ए की वजह से हो रही है जब अपन इस ए को कोई कल्चर के अंदर ऑब्टेन कर ले। सेम यही पाया गया, इसको जब अपन ने किसी दूसरे के अंदर डाला ए को, तो सेम इसके अंदर भी एक्स नाम की एक डिजीज़ हुई। एक्स इस नाम की डिजीज़ से वापस से अपन कल्चर या इनोकुलेट, तो वापस से अपन को यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला, तब जाके अपन कह सकते हैं हाँ दैट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेस्पेक्टिव disease, so that is known as the cause postulated। बट इसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अपन ने इसको इन विट्रो कल्चर किया, मतलब आउटसाइड द सेल। तो अपन ने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म के, जो खुद के एटीपी सिंथेसाइज नहीं कर पाते, इसलिए उनको दूसरे के सेल पे डिपेंड रहना पड़ता है। हेंस जो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो तो इन विट्रो अपन रख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि दे कांट produce their own ATPs, hence they can't survive in vitro। Hence the microorganisms that do not meet this criteria, जो इन चार क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। माइकोबैक्टीरियम लेप्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेप्रोसी एंड ट्रिपोनिमा पैलिडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलिस। Hence they can't be cultured in vitro। तो आप जब ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर में देखेंगे तो इनका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। थर्ड वन इज एन गोनोरिया विच डू नॉट फॉलो दिस कोर्स पोस्टुलेट, नो एनिमल मॉडल फॉर एक्सपेरिमेंट। ये जो एनिमल मॉडल अपन लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए, तो एन गोनोरिया के लिए कोई एनिमल मॉडल नहीं, इस वजह से ये इस पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स पोस्टुलेट। इट इज समझने के लिए बस ये 4 पॉइंट है, अदरवाइज इट इज ऑल बी थ्योरेटिकल बेसिस। नेक्स्ट टॉपिक टुमारो वी विल लर्न अबाउट स्टेरिलाइजेशन एंड कल्चर मीडिया, वेरियस कल्चर मीडिया। थैंक यू।